टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि एक ऐतिहासिक इमारत जो है आसार महल जिसे कहा जाता है और एक धार्मिक स्थल भी माना जाता है कि जिसमें हमारे मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक भी यहाँ पर रखा गया है, जिसका हर साल जो है आसार उर्स जो है वो मनाया जाता है, जो कई दिनों से खस्ता हालत में था। तो यहाँ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के उस्तुवारी मंत्री एमबी पाटिल साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि 90 लाख रुपए आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर सैंक्शन कराया हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी पूरी मरम्मत का काम जो है वो यहाँ पर शुरू होगा। साथ ही साथ इस काम में जो है कांग्रेस लीडर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब और यहाँ के आसार की कमेटी और उस्तुवारी मंत्री एमबी पाटिल साहब ने मिलकर जो है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से 90 लाख रुपए जो है यहाँ की आसार को मरम्मत करने का काम जो है वो शुरू किया गया। आसार महलದಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮಾ ನಮಾಜ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಮನು ಬೇಗಿ ಮತ್ತು ಜಾವೀದ್ ಕಾಜಿ ಇವರು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೊಂಟಾರ. ಇವರು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಜ್ ಕಬೂಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಮುಂಚೆ ಆಸಾರ್ ಮಹಲ್ ಹೋದ ಸಲ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು, ಕುಸಿದು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಈ ಆಸಾರ್ ಮಹಲ್ ಮುತವಲ್ಲಿ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಜಮಾತ್ದವರು ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಒಯ್ದರು. ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಗ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕರೆದು ಮತ್ತು ಆರ್ಕಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದರು. ಈಗ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಈ ಆಸಾರ್ ಮಹಲ್ ರಿಪೇರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, SP ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಈ ಆಸಾರ್ ಮಹಲ್ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಸಾರ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಸಾರ್ ಮಹಲ್ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರಕವಿದ್ದು, 500 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರಕವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಜರೂರಿ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಜಮಾತ್ದವರು, ಮುಶ್ರೀಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಮತ್ತು ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆರ್ಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲದೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ಪಂದಿಸಿದ. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮುಷ್ರಿಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು, ಮೈನೂ ಬೆಳಗಿಯವರು ಕೂಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸಾರ್ ಜಮಾತ್ ಜಿಲಾನಿ ಇನಾಮದವರು ಕೂಡಿ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಒಯ್ದಿದ್ವಿ. ನಿಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಛಾವಣಿ ಭಾಳ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೀರು ನಲ್ಲಿಯಂಗೆ ಸೋರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಒಯ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ HR ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಸಾರ್ ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಾಜ್ ಬೋಡಿಯನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅದರಂತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸತತ 7 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವರು, ಅಸಾರ್ ಜಮಾತ್ದವ್ರು ಕೂಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು. ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಇಟಂಗ್ಯಾಳದಲ್ಲಿ 267 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ KSI ಡೆಲ್ಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ನಿಶಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. अस्सलाम वालेकुम। आज से 1 साल 2 साल पहले से जो है MB पाटिल साहब को पूरे असार की जमात और यहाँ के बीजापुर के लोग मिला को सभी मिला को हमीद मुशीफ उनको सबको मिला को उनको मनवी करे थे। तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ से जो है यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है फर्स्ट जो है मुहिम मुबारक है असार शरीफ के अंदर। इसकी काजी करने का असर जो है हर तरफ से ऊपर का ये पर लकड़ी के ये गुम्मत के जो फड़ी पड़ रही गुज रहे बोल को सब भी मनवी कहते। तो ये अटका जी के सर्वे ऑफ इंडिया को पीट लगे थे, तो उनके वहाँ भी टाइम जाना गया। बाद में MB पाटिल साहब को जो MB पाटिल साहब को SP साहब को लेकर को 6 महीने पहले DC साहब को लेकर क्या ये मनवी करे थे। तो उस टाइम जो है DC साहब को प्रेशर डाल को MB पाटिल साहब जो है हमारा हमीद मुशीफ साहब जो है इसका असार का जो 90 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट सैंक्शन करें उसका हमें शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं आसार गली तमाम जमात वालों की जानिब से खुसूसन बिलखुसूस हमारे नफीस हरियाल साहब, मुख्तार दखनी साहब और जिलानी इनामदार साहब और जावेद मामू किलेदार साहब, हाफिज़ काजी साहब और पूरे यहाँ के नौजवानों की जानिब से बड़ी मेहनतें थी। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल से इस मुक़द्दस जगह पर खिदमत कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों की मेहनत को देख रहा हूँ। बड़ा खस्ता हाली था और इन लोगों की तमाम लोगों ने मेहनत की। डॉक्टर MB पाटिल साहब के पास गए और वहाँ जाकर यहाँ की खस्ता हाली बयान किए। उन्होंने हमारी आर्जी को सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लिए 90 लाख रुपए सैंक्शन किए। मैं उनको तमाम जमात वालों की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे हमीद मुशरिफ साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुक़द्दस जगह का ख्याल किया। और आगे भी यही उम्मीद करूँगा कि पूरे शहर बीजापुर ये बड़ा तारीख़ी शहर है, जहाँ कहीं पर भी ऐसी जगह रहे तो वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस शहर को और भी खुशहाल और खुशगवार बनाएं। मैं यही दिल से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जमात वालों को भी तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप लोगों के मेहनत से ये काम हुआ। तमाम बीजापुर के लोगों को मैं सलाम करता हूँ और आसार की ये जो जमात है और हमारे मुशरिफ फैमिली का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे आज यहाँ पर बुलाकर हज को जाने की खुशी में गुलपूशी करे। मैं उनका सब यहाँ पर रहने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। असल मुद्दा ये है कि आप ये जो देख रहे हैं ये आसार महल है। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है। जो बीजापुर में पहले मुँह मुबारक आया था वो यही है। तो यहाँ की हालत, इस आसार महल की हालत इतनी खस्ता हुई थी कि ऊपर से ज़रा सी बरसात आए तो पानी पूरा ऊपर से नीचे आता था और बहुत सी तकलीफ़ होकर ये आज या कल में गिरने की सिचुएशन थी।
हमारे इस आसार महल्ले के जो जमात वाले हैं और हमारे मुशरिफ फैमिली है और हमारे हमीद मुशरिफ साहब हैं, एडवोकेट दखनी साहब और हमारे जिलानी साहब, ये सब पूरी टीम मिलाकर के आए। मालूम है कि हमें डॉक्टर एम बी पाटिल साहब को जाकर मिलने के बाद में ऐसी हमारी हालत है, हमारे आसार आज नहीं तो कल ये पढ़कर इसकी बहुत बड़ी बुरी हालत हो जाएंगी। आप जरा आकर एक नज़र डालें बोल को, और उनको ये भी याद दिलाए कि पिछले बीजापुर के अंदर जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें जैसे ताज बोड़ी हो, चंदा बोड़ी हो, बाकी की भी और भी जो बोड़ियाँ हैं, ये पूरे बोड़ियों को साफ करने का काम जो है डॉक्टर एम बी पाटिल साहब जो है उन अपने हाथों से अपने पीरियड के अंदर करे थे। इसलिए उनको बोलने के बाद उन्होंने फौरन डीसी साहब को बुलाकर यहाँ का दौरा करके आज बीजापुर में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आसार महल को 90 लाख रुपए डॉक्टर एम बी पाटिल साहब प्रेशर डालकर अपने हुद्दे का वो सही इस्तेमाल कर कर आसार महल के लिए 90 लाख रुपए सैंक्शन करे हैं। पूरे बीजापुर के मुसलमानों की तरफ से और मोहल्ले वाले जमात वालों की तरफ से और हमारे मुशरिफ फैमिली की तरफ से मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिन में और भी हमारे जो पुरातत्व इलाके के हमारे जैसे मस्जिदें हैं, जैसे दरगाहें हैं, उन सब का भी आप आने वाले दिन में ख्याल रखते हुए उनका भी काम आप कराएंगे। हमारी पूरी टीम इस काम में इंशाल्लाह आगे भी डॉक्टर एम बी पाटिल साहब को मिलती रहेगी और ऐसे काम बीजापुर के अंदर पूरी जगह हम कराएंगे। और दिल की गहराई से आज और एक बार बोल रहा हूँ, डॉक्टर एम बी पाटिल साहब का हम पूरे बीजापुर के मुसलमानों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर ये काम कब शुरू होगा? ये काम कब शुरू होगा? अभी तो ये मई में अभी जो पैसे बारिश अगर शुरू हो गई तो फिर काम नहीं कर सकते, फिर इमारत को जो है काफी सारा नुकसान उठाना पड़ता है। जुलाई के अंदर ये होने वाला है, मई के अंदर उन्होंने करतू कर को बोला है, मई से स्टार्ट हुआ कर बोलेगा तो देखेंगे। अभी पैसा तो सैंक्शन हुए, एक एक हंत बाय हंत उसका काम भी इंशाल्लाह होता रहेगा। अभी इतना इम्पोर्टेंट है कि वो पैसे आज तक कौन सैंक्शन ही नहीं कर रहे थे। अब हमीद मुशरिफ और हमारे बीजापुर के हमारे पूरे मुझे नाम सबका लेने नहीं आ रहा, माफ़ी चाहता हूँ, नफीस हरियाल साहब और हमारे जावेद मामू, इन सब जने मिला कुछ कोशिश करें और पूरे बीजापुर के मुसलमानों की भी इसके अंदर अहम रोल है। क्यों कर को बोलेगा तो डॉक्टर एम बी पाटिल साहब जो हैं आने के बाद में हमारे दखनी साहब, हरियाल साहब, जावेद मामू, हमारे जिलानी और हमारे फर्स्ट मेयर सज्जाद मुशरिफ साहब, इनकी पूरी फैमिली जो है डीसी ऑफिस को आकर हमीद मुशरिफ को साथ में ले जाकर बैठकर एम बी पाटिल साहब के आए मानों में ये काम कर को दें। उनका सबके तरफ से उनको दिल की गहराई से उनका शुक्रिया। 90 लाख में काम होता है कि अभी पैसे की जरूरत पड़ती है? जरूरत पड़ी है शायद। अब आप भी 25-30 साल से कोशिश किए थे लेकिन नहीं हुआ था। उनके प्रेशर की वजह से एचआर मिनिस्टर से क्या बात करें, एम बी पाटिल साहब खुद होके तब ये हो कि डिप्टी कमिश्नर यहाँ की जो हालात समझाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये फंड सैंक्शन किए। सर सिर्फ मस्जिद दरगाहों के बारे में बात की गई, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक हैं जहाँ गोल गुम्बद का भी बहुत कुछ गिरा है, इब्राहिम रोज़े का भी बहुत कुछ गिरा है। क्या उसके बनाने के बारे में भी कुछ आप एम बी पाटिल साहब को एक प्रेशर देंगे? एम बी पाटिल साहब को इसके बारे में और एक बार पूरे जने बिना साहब को एक मनवी करते हैं, मनवी कर को इंशाल्लाह वो भी काम कराने की मैं कोशिश करते हैं। सर और बहुत सारे जो मोनूमेंट्स हैं वो खंडर बन चुके हैं। अब यहाँ पर एक हरन शिकारा गली में आप एक इमारत देखते हैं वो गिरा रहे थे उसे। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी इसके, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसके बारे में बहुत ये करने लगे हैं। उनके साथ साथ हमें भी उनका साथ देकर उसके भी बारे में आगे ये करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी डॉक्टर एम बी पाटिल साहब बबलेश्वर मत क्षेत्र के एमएलए रहने और साथ ही साथ कांग्रेस के उस्तुवारी सचिव रहने के बावजूद भी क्या है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आसार महल का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है आप इस सिटी एमएलए सिटी एमएलए बसंतगौड़ा रत्ना साहब को आप क्या कहना चाहेंगे इस बात में? है इसमें विषय के बोलने का उन्हें क्या समझ होना है बसंतगौड़ा इतना। और एक बात बोलना सिटी चाहता एमएलए हूँ, रहने के बाद और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं ले रहे। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आज से 2 साल पहले एम बी पाटिल साहब बीजापुर के जितने आदिल शाही पीढ़ी के ये हैं बादशाह हैं और दूसरे बादशाह हैं, उनके बारे में हिस्ट्री लिखे हैं, हिस्ट्री लिखा है। मैं वो भी धन्यवाद बोलता हूँ। एम बी पाटिल साहब ही करें, दूसरे कौन नहीं करे थे, हिस्ट्री लिखा है, बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखा है। आदिल शाही फैमिली के बारे में प्रिंट है, आदिल शाही फैमिली के बारे में एम बी पाटिल साहब उसका एक ही बनाए, वो कहते हैं 19 बुक है, 19 है बुक्स। है। बोलो क्या बोलते हैं।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।